Industry. Industry, already we have done that. What is industry? Just, just a minute. I should stop annotating. Then, okay. So industry is what? Industry which involves in the production of goods. Clear? The industry involves in the production of goods, and it is divided in two parts, that are primary industries that are again divided in two parts, that are extractive industry and genetic industry. Okay, and the secondary industries are again divided in two parts, that are manufacturing industry and construction industry. Okay, extractive industry, what they use? They use to extract the products from the natural resources to consume. And the genetic industry, they involves in breeding of flora and fauna. Like secondary industry, they use the products made by the primary industry. जो primary industry product बनाते हैं, they used to use those products. Okay, and this is also divided in three parts. That is manufacturing industry, they create tangible products, and the construction industry, they uses product of extractive and manufacturing industries to build. Okay, and service industry, that means that's a tertiary industry. They belongs to the service sector, which they are providing the services. Okay, and they are assisting the primary and secondary industry. Okay, so now if we talk about the classification of primary industry, so primary industry, we know they are primary industry. Primary industry is genetic, right? Genetic, extractive. Then secondary industry. The secondary industry, it includes activities which involve the transformation of raw materials into finished goods. Then it involves the manufacturing, that refinery that I told you, that the we can say that analytical industries, which we can say, and the construction industry, which involves in the construction of building, dams, roads, etc. And what is the main feature of the construction industry? I told you that this is not what? Okay, you people are muted. Okay, the place of these, it means we can say whatever the things we are producing in the construction industry, they cannot shift from one place to another place. Okay, so this was the review only. That was that, and the tertiary industry, the tertiary sector of the economy is the service industry. This sector provides services to the general population and to the businesses. Okay, whatever the activities that are associated with this sector, it includes retail and wholesale, transportation and distribution, entertainment, restaurants, clerical services, media, tourism, insurance, banking, healthcare, and law. Okay, now we'll move to the second point, the second part of our business activities, that is commerce. Okay, now commerce is what? Commerce is concerned with buying and selling of goods and the distribution. The main feature we are going to discuss, that is what? That is distribution of goods. Because it is an organized system for the exchange of goods and services between the members of the business world and the society. Business world, which are all these industries who are producing the goods, who are converting it into semi-finished or finished goods. And whatever they are producing, commerce, they what to do? They used to distribute those goods which are produced by the industry. Okay, the main thing of commerce is distribution. This is only a simple thing that I am telling you, that now what we have to see, that commerce is again divided in two parts, that is trade and auxiliaries to trade. Okay, that is trade and auxiliaries to trade. So what is trade? Now trade, what? Trade means buying and selling of goods. बिजनेस करना, ट्रेड में क्या करते हैं? बिजनेस, दैट हम क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, बेचते हैं. It involves the exchange of commodities for the money, or money is what? किसके लिए? पैसे के लिए. Exchange of commodities, चीजों का आदान प्रदान जिसे कहते हैं, exchange, लेना देना. ठीक है.
कमोडिटीज बिजनेसमैन देता है और उसके बदले में बिजनेसमैन को क्या मिलता है, पैसा मिलता है. So trade means buying and selling of goods in the exchange of commodities for money or money's worth. It is a mean that by which people sell those goods which they do not need. Traders serve as a link between producer and the consumer. They help in directing the flow of goods to the most profitable market. They also bring about the distribution of goods in the absence of traders. Producers will have to go in search of consumers, trade in the nucleus of commerce, other parts of commerce such as transport, insurance, warehousing, banking, advertising. So mainly the simplest thing which I want to tell you that what is trade? Trade means buying and selling of goods for purpose. For which purpose? For exchange of commodities for money or money's worth. Okay. इसमें क्या होता है विच पीपल दे वट एवर द पीपल दे सेल दोज गुड्स, ये वो गुड्स जो है वो सेल करते हैं जिससे उन्हें जरूरत नहीं होती है और उसके बदले में उस सामान को ले लेते हैं. ठीक है. ट्रेडर्स सर्व, जो ट्रेडर्स होते हैं दे आर द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. जो मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को और जो कंज्यूम करते हैं उनके बीच में एक लिंक का काम करते हैं ट्रेडर्स, जो ट्रेड कर रहे हैं यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं. ठीक है. तो व्हाट द ट्रेडर दे सर्व एज द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर और वी कैन से प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. लिंक मींस ये एक बीच के लिंक का काम करते हैं. जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया, दे विल प्रोड्यूस द गुड्स. ठीक है. वो किसके पास आएगा? ट्रेडर के पास आएगा और ट्रेडर के पास से किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास जाएगा. ठीक है. तो ट्रेड इज व्हाट? ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स and it involves the exchange of commodities for money and money worth, and they serve a link between the producer and the consumer. Okay, now if we talk about trade are divided in two parts, that are home trade and foreign trade. Home trade is also called the domestic trade. Okay, domestic trade is what? Domestic trade means which the business which involves means which occurred in the geographical boundaries of a country. Okay, इंटरनल, इसको इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं. इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड. ठीक है. होम ट्रेड क्या होता है? दिस ट्रेड रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द geographical boundaries of one country. मतलब एक ही कंट्री के अंदर जो बिजनेस होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होम ट्रेड बोलते हैं. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट फॉरेन ट्रेड? होम ट्रेड तो हो गया जो इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, और फॉरेन ट्रेड क्या हो गया? इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं. एक्सटर्नल मींस बाहर, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, मतलब जो कंट्री से बाहर भी होता है. ठीक है. एक्सटर्नल ट्रेड दे रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. ओके, इन डिफरेंट कंट्रीज. And home trade in one country. So trade is what? Trade means buying and selling of goods for money and money's worth, exchange of goods and services, and they serve as a link between the manufacturer, मतलब जो सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है. Okay, it is divided in two parts, that are home trade and foreign trade. Okay, home trade क्या है? Home trade, the home trade refers to buying and selling of goods and services with the geographical boundary of a country. एक ही कंट्री के अंदर जो बिजनेस होता है उसे हम कहते हैं होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड. ठीक है. और फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड इट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल ट्रेड आल्सो, एंड इट रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द geographical boundary of a country. Means it will here the buyer and seller with the different countries you can see. Okay, now अब अगर हम बात करें कि होम ट्रेड is again divided in two parts, that is wholesale and retail. Okay, wholesale and retail. See, wholesale and retail. Wholesale क्या है?
होलसेल बिजनेस में क्या होता है, जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, होलसेल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड दे सेल देम टू द रिटेलर इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या है, ये होलसेलर जो होते हैं ये किससे गुड्स खरीदते हैं, प्रोड्यूसर्स से। ठीक है, याद रखिएगा, दे आर अ लिंकिंग पिन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर, राइट। Again, I am repeating, home trade. Trade is divided in two parts, that is home trade and foreign trade. Okay, home trade means where the business is between one country only. Okay, एक ही कंट्री में जो बिजनेस किया जा रहा है वो होम ट्रेड कहलाता है। होम ट्रेड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, that is wholesale trade and retail. This is not the detailed explanation, this is a review of your classification of commerce. Okay, home trade is divided in two parts, that is wholesale and retail. Okay, wholesale trade क्या है, होलसेलर जो होलसेल ट्रेड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं, दे आर बीइंग कॉल्ड होलसेलर। और होलसेलर का क्या फंक्शन होता है, होलसेलर का फंक्शन होता है कि वो जो सामान होता है वो प्रोड्यूसर से खरीदते हैं। ठीक है, जैसे फार्मर्स हो गए, ठीक है, जो भी उस सामान को मैन्युफैक्चर करना है, किसी भी चीज के होलसेलर हो गए आपके, जो मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को, ठीक है, वो हो गए आपके प्रोड्यूसर। ठीक है, तो होलसेलर क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं, गुड्स को खरीदते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, बल्क क्वांटिटी मीन ज्यादा क्वांटिटी। ठीक, और दे परचेज द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स इन बल्क क्वांटिटी, और फिर देते किसको है, जो होम ट्रेडर्स होते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है आपके, होलसेल एंड रिटेल। अब होलसेल किससे लेते हैं सामान को, किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से। ठीक है, किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से, और किसको देते हैं, रिटेलर से। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूं, जो होलसेलर होते हैं वो किससे परचेज करते हैं चीजें, वो परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, और वो देते किसको है, रिटेलर्स को। ठीक है, तो होलसेलर इज अ लिंक पिन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। उसके बाद अगर हम बात करें रिटेलर की, ठीक है, तो रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर जो होते हैं वो होलसेलर से सामान खरीदते हैं जाके, और किसको बेचते हैं, हमें, हम लोग कौन है, कंज्यूमर। ठीक है, तो इसका मेन चीज ये है आपका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से किसके पास पहुंचा, होलसेलर के पास। ठीक है, होलसेलर ने किससे लिया, प्रोड्यूसर से लिया, फिर प्रोड्यूसर ने क्या किया, होलसेलर को बेचा, फिर होलसेलर ने किसको दिया, होलसेलर ने दिया रिटेलर को, और फिर रिटेलर किसको देता है, अल्टीमेट कंज्यूमर को। आई बात समझ में, फिर से देखिए, गुड। होलसेलर क्या करते हैं, दे गिव्स टू retailer, and the retailer they gives to consumer। और होलसेलर को कहां से मिलता है सामान, ठीक है, now you can understand easily। producers, then wholesaler,
then retailer and then the consumer. Okay, तो wholesaler क्या हो गए? Those who purchase goods from the producers and they gives to retailer. और retailers कौन हो गए? retailer businessman कौन हो गए? who purchase goods from wholesaler and they sell to the consumer. आई बात समझ में? आई बात समझ में? Yes, Afreen. Just a minute, I'm unmuting you. Okay, Vaishnavi, understood. Good. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Now tell. Ma'am, from producers के पास मैम goods मैम manufacture होते हैं ना? Yes, yes. They are manufacturing the goods. वो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं जैसे फार्मर्स हो गए या फिर जो लकड़ी में मान लीजिए फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, तो बल्क क्वांटिटी में फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक। अब उसको क्या किया, मतलब जो तो मैन्युफैक्चरिंग में लगे ही हुए हैं, ठीक, वो क्या Yes, लेंगे, वो लेंगे आपका वुड जो है वो फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री से ले लेंगे, ठीक है, जो फॉरेस्ट्री की Yes, फार्मिंग में लगे हुए हैं, ठीक है, अगर फर्नीचर बिजनेस है, ठीक है, या फिर अगर आपका फूड बिजनेस है, यू कैन से, तो फूड बिजनेस क्या होंगे, वो किसान फार्मर्स से ले लेंगे, ठीक है, जो खेती करते हैं, जैसे किसी किसी की Yes, ma'am. राशन की शॉप है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, राशन की शॉप है, तो राशन की शॉप है तो वो किसके पास जाएंगे, फार्मर्स के पास जाएंगे, ठीक है, उनसे वो बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे, कौन, होलसेलर, Yes, ma'am. ठीक है, और होलसेलर किसको देगा, Wholesaler. होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को देगा, Retailer. they will give to Yes, retailer ma'am. and the retailer will give to ultimate consumer who we are, right? Yes. आई बात समझ में? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now understood. Now it is clear. Okay, thank you. So again we are coming to the point that is just a minute. Yes. So the next is foreign trade. Foreign trade, import, export and import. Okay. Foreign trade हमारा 3 parts में divided है, that is import, export and import. Import क्या होता है? It means that we purchasing goods and services from other countries. Import करना सामान, किसी other country से सामान को लाना, जैसे हमारे India is importing the petroleum products from Iraq and Iran, like precious stones we are importing, chemicals we are importing, okay, so we are importing this from another country. तो importing means लाना, अपनी कंट्री में लाना, इंपोर्ट करना, ठीक है, तो दूसरी कंट्री से जो भी गुड्स अपनी कंट्री में लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, इंपोर्ट ट्रेड, ओके, means purchasing the goods and services from other country. And if we talk about export, so export means it involves the selling goods and services to other countries. मतलब हम अपने यहाँ की चीजें जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जब बाहर बेचते हैं, दूसरी कंट्री को बेचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड, ओके। जैसे हमारे यहाँ कॉटन, शुगर, ये सब चीजें क्या की जाती हैं, बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जाती हैं। नाउ इंटरपोर्ट क्या होता है, इट मींस इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन और मोर कंट्रीज विद द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम। मतलब इसमें थोड़ा सा आप लोग आई थिंक कंफ्यूज होंगे। इंटरपोर्ट मतलब अगर हमें कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, अगर हमें कोई चीज किसी दूसरी कंट्री को बेचनी है, तो वो हम दूसरी कंट्री से खरीदेंगे अपने पास, और उसके बाद दूसरी कंट्री से खरीद के फिर हम वो दूसरी कंट्री को बेचेंगे। आई बात समझ में? तो इंपोर्ट इज व्हाट, इंपोर्ट इज purchasing goods and services from one country from another country. Exporting means selling the goods and services to another country, and interport matlab purchasing the goods from one country and selling it to another country. Okay, purchasing the goods from one country for the purpose of selling goods to the another country. Okay. Okay.
नाउ वी आर कमिंग टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होते हैं बेटा? और द टाइप, इसको एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं, AIDS एड्स टू ट्रेड, राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं? एड्स टू ट्रेड रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो फैसिलिटी दें गुड्स और सर्विसेज को स्मूथली चलाने के लिए जो सर्विस दी जाती हैं, मीन ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, दैट आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड, मीन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, जो इस चीज के रूप में काम करते हैं कि वो बहुत, हमारा जो वर्क है, ट्रेड है, जो हमारा बिजनेस है, वो बहुत स्मूथली चलता है। उसके लिए अब हम बात करें कि अगर जो मेन एड्स टू ट्रेड है, जो पहला है हमारा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो मेन हिंड्रेंस प्रॉब्लम है वो प्लेस प्रॉब्लम है, ठीक है। जो हिंड्रेंस, जो रुकावट आती है बिजनेस में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमर्स में कई तरह की रुकावटें हैं। जैसे कॉमर्स की हम बात करें तो कॉमर्स के में आपको बताया था मैंने, द मेन फंक्शन इज व्हाट ऑफ कॉमर्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स इज दैट दे, यू नो, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि उसे बहुत सारी स्टेजेस, बहुत सारी हिंड्रेंसेस से गुजरना पड़ता है। हिंड्रेंसेस इज द सेंस रुकावटें, ठीक है। जैसे पर्सन, दे आर नॉट गेटिंग द पर्सन, वो नहीं, उन्हें पता चल पा रहा है बिजनेसमैन को हु इज सप्लाइंग, हु इज जस्ट, मतलब पर्सन की क्या जरूरतें हैं, ठीक है। तो वो कॉमर्स ने दूर किया। अभी कैसे दूर किया वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे दूर करते हैं। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है, किस तरह से मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द प्रोड्यूसर्स टू सेंड देयर गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। जो मैन्युफैक्चरर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि वो कैसे अपने गुड्स को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। वो भी कॉमर्स ने सॉल्व किया, वो कॉमर्स से आपके ट्रेड से सॉल्व होता है। उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाए। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। कैसे? टाइम मतलब जब हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम की बात अगर करें कि कोई भी गुड्स जो प्रोड्यूस होता है वो एक टाइम पे होता है, और उसका कंजम्पशन जो होता है, मतलब जो उसको हम यूज करते हैं, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। मतलब अलग पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। और दूसरी चीज ये है कि वो लंबे समय तक होता है। गुड्स तो एक बार में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका कंजम्पशन क्या होता है? थ्रू आउट द ईयर होता है। तो उतना सामान, उतना जो गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर होगा, वो रखा कहाँ जाएगा, राइट। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम वी कैन से, डिमांड उसकी पूरी साल भर रहती है। भाई साल भर हम लोग क्या करते हैं, आटा दाल चावल हम लोग साल भर मंगाते हैं, मंगाते हैं कि नहीं मंगाते हैं। लेकिन उसकी जो खेती होती है वो क्या होती है, वो एक ही बार होती है, सीजनल होती है, ठीक है। तो उस गुड्स को हम स्टोर कहाँ करके रखें, ये प्रॉब्लम कॉमर्स सॉल्व करता है। जो अभी हम लोग एड्स टू ट्रेड पढ़ने वाले हैं उसमें यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम रिस्क की बात करें, जब हम स्टोर करके रखते हैं कोई चीज तो उसको खराब होने का डर होता है। बारिश हो गई, फ्लड आ गया, कुछ भी इस तरह की फायर, आग लग गई, कुछ इस तरह की चीजें हो गई, तो वो रिस्क है, राइट। तो उस रिस्क को भी सॉल्व करने के लिए चीजें चाहिए। तो ये भी प्रॉब्लम हमारी कौन सॉल्व करता है? ऑक्सिलरी कॉमर्स। कैसे सॉल्व करता है दैट वी विल एक्सप्लेन, आई विल बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, कभी अगर बिजनेसमैन है, हर तरह की स्टेजेस होती हैं। अगर हमारे अगर जो बिजनेसमैन है वो, अगर उनका जरूरी तो नहीं है एक बार में सारा प्रोडक्ट बिक जाए, तो उन्हें जो चीजें चाहिए होती हैं वो तो ऑल थ्रू आउट द ईयर उनका सामान बिकता है, ठीक है। तो जो थ्रू आउट उनका सामान बिकता है तो उनको थ्रू आउट ईयर तक उनको पैसा मिलता है। तो अब बात ये आती है कि जब उन्हें दोबारा चीजें मैन्युफैक्चर करनी होगी अगले सीजन में, तो उनको पास पैसा कहाँ से आएगा? तो फाइनेंस की जो फैसिलिटी होती है वो भी हमारा कौन पूरा करता है? कॉमर्स पूरा करता है, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, लोगों को ये चीज पता नहीं होती है कि चीजें कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। कंज्यूमर्स दे आर, तो कंज्यूमर्स को उस चीज की जानकारी देना, कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, दैट ऑल्सो अ वर्क ऑफ कॉमर्स,
that belongs to auxiliaries to trade, right? So these are the points which are very important. That's why it is very important to that's why the commerce is very important, because these all problem has been solved. The commerce is solving has been solved by commerce. Okay, so now if we talk about the aids to trade, so aids to trade, they refers to those activities that facilitate the buying and selling of goods and services. Means first is transportation. So children, I think the time is going to get over. So if any problem is there, you can ask me. This topic we will discuss in our next class. Only 4 minutes, 3 minutes are left. So the points we'll discuss this it's to trade in our next class. Tomorrow is our next class. Yes, tomorrow we'll finish this topic.